Hello aspirants, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, I'm going to discuss about the Global Gender Gap Report 2025. And recently basically this report was published by World Economic Forum. Okay, published by World Economic Forum. You'll have to keep in the mind. So in this video I will try to basically discuss about what is global gender gap report. Then after that we'll discuss about what is the rank of the India, and then also we'll discuss about the you can say now rank of the various neighboring country of India. We'll discuss all the thing. So first of all, before moving ahead, we'll have to know about what कि as you know कि global gender gap report 2025 recently launched by World Economic Forum. And basically this report you can say ki compile the data related to the fourth sector: education, politics, health and economic participation. We'll discuss all the thing. So let's move ahead and let's discuss about the one thing ki that is, you can say now, please keep in the mind ki if you talk about the reports and indexes, this is really very important for you can say your upcoming examination. And this report is really also important for the UPSC mains and your state service mains or any exam. Maybe you'll get the question, what is the rank of the recently released global gender gap report, rank of India. And then also maybe you'll get the question, global gender gap report is published by whom. You'll have to understand about these things. So let's move ahead and let's discuss one thing that is also important. If you'll talk about at present, you can say now the latest news, the context is what, please try to understand कि rank of India 131 out of 148 countries. Out of 148 countries, we'll have to know about this. And also if we'll talk about the global gender gap report, so this is an annual index published by the World Economic Forum. You will have to keep in the mind. And now let's discuss the detail related to this report. So you can see here, so I already told you the World Economic Forum released global gender gap report 2025. 2025. And if you talk about the India's rank, so I told you India's rank is what, 131 out of 148 countries. And the parity score is just 64.1%. तो वर्ल्ड का जो लेवल है ना, अगर हम बात करते हैं ऑन एवरेज वर्ल्ड पर अगर आप देखेंगे तो यही जो पैरिटी स्कोर आपको दिखाई देगा वो लगभग 70% के लगभग, उससे इंडिया का जो है आपका कम है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट आपको पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वो आपको थर्सडे को जो किया गया, जिसमें इंडिया जो एक लोएस्ट रैंक की कंट्री के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, खास करके साउथ एशिया में अगर हम लोग बात करेंगे, एज यू नो कि अगर हम बात करते हैं साउथ एशिया में, ठीक है, कि इंडिया जो एक लार्जेस्ट कंट्रीज है, आप जो है रिपोर्ट भी देखेंगे, परसों का भी न्यूज था, कल का भी न्यूज था कि इंडिया के पॉपुलेशन को लेकर के, ठीक है, 140 करोड़ से ज्यादा इंडिया के पॉपुलेशन जो है हो चुका है। हाँ, ऑफ कोर्स कि इंडिया का रैंक जो है साउथ एशिया में खराब है, बट हमें ये भी तो समझना होगा ना कि इंडिया जो है एक आपका क्या है, लार्जेस्ट जो है अगर हम लोग बात करेंगे कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और अपने इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, ठीक है, वहां पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रिपोर्ट आपके मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हो सकता है। ठीक है, सो लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे कि इंडिया का रैंक था 129 बट आउट ऑफ 146। बस इस साल क्या हुआ, इसमें दो कंट्री जो है आपके ऐड हो गए, तो इंडिया का दो रैंक भी जो है पीछे चला गया, 131 जो है आपका हो गया। एंड जो मैंने आप लोग को बताया है कि ये रिपोर्ट जो है वो क्या बताता है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो क्लोज है आपका 68.8%। एंड एक चीज हम लोग ये भी बात करेंगे कि कोविड-19 के बाद इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आपका बहुत सारे जो है कहते हैं ना एडवांसमेंट्स भी हुआ है, मतलब कि सुधार भी जो है बहुत सारे कंट्री में हमें दिखाई दिया है। लेकिन अभी भी जो फुल पैरिटी को पूरा करने में जो टाइम लगेगा, इट विल बी 123 ईयर्स। जो करंट रेट से अगर उस हिसाब से फुल पैरिटी की बात करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका 123 साल लग जाएगा। फुल पैरिटी मतलब क्या, यू कैन से ना कि मेन एंड यू कैन से वुमेन्स। And also please keep in the mind which country is the you can say now first rank holder in the global gender gap report. So we can say what, आइसलैंड। जो आइसलैंड है, खास करके नोवेडिक जो हम लोग कंट्री कहते हैं ना, वो अपने आप में उस इस सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें देखिएगा इन लोग का जो रैंक और टॉप पे ही रहता है। तो आइसलैंड जो है वो आपका पूरे 16 सालों से
ठीक है, आपका पहले ही रैंक पे रहा है आइसलैंड, प्लीज कीप इन द माइंड। उसके बाद सेकेंड रैंक फिनलैंड, then after that Norway, then United Kingdom, and then New Zealand. Okay, so please keep in the mind India rank so 131, okay, out of 148. Then Iceland first rank, Iceland you'll have to keep in the mind. Then after that if you talk about the second rank, okay, that is Finland, and then जो है आपका थर्ड नॉर्वे, फोर्थ यूके, फिफ्थ न्यूजीलैंड। और ये देखो, जो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो इस रिपोर्ट की अगर आप बात करोगे, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो हम लोग एक चीज समझना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ना, वो आपका 2006 से जो है आपका क्या है कि पब्लिश जो है हुआ है, फ्रॉम 2006। ओके, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यू कैन से ना रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट फर्स्ट टाइम इन 2006, ओके, फर्स्ट टाइम इन 2006। एंड जो आइसलैंड है वो 16 सालों से लगातार जो है आपके पहले रैंक पे आपका रहा है, विल हैव टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ आई टोल्ड यू द इंडियाज रैंक 131, ओके। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये डायरेक्ट न्यूज जो है मैंने आपके द हिंदू से जो है लिया है, और कल के सारे न्यूज पेपर में जो आपका दिया हुआ था इसके बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू द फ्यू थिंग्स। अगर आप बात करते हो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, ठीक है, तो ये आपका कहाँ कहाँ फोकस करता है, प्लीज कीप इन द माइंड, इट फोकस ऑन एजुकेशन। ये कहाँ कहाँ फोकस करेगा, सो फोकस ऑन फर्स्ट एजुकेशन, देन अगर हम बात करेंगे हेल्थ, देन जो है ये आपका किसको फोकस करता है, हेल्थ को जो है ये आपको फोकस करता है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, देन जो है ये आपका कहाँ फोकस करता है, सो वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, कि अगर हम बात करेंगे हेल्थ हो गया, देन पॉलिटिक्स, ये आपका किसके ऊपर, जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, एंड देन आफ्टर दैट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ओके, प्लीज कीप इन द माइंड। Now let's move ahead and let's discuss about the best performer country in the South Asia. So best performers country में जो आपका उभर के आया है, that is बांग्लादेश। Bangladesh basically emerged as the best performer, okay, in a South Asia, and basically Bangladesh jumped 75 position to rank 24 globally, okay, with the notable gains in पॉलिटिकल इंपावरमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर साउथ एशिया में अगर हम लोग देखेंगे, तो बांग्लादेश जो है वो आपका 24th रैंक जो है आपका गेन, 24th रैंक जो है उसको मिला है। और उसके पीछे दो रीजन है, वहां पे एक पॉलिटिकल इंपावरमेंट जो है महिलाओं का, जो फीमेल्स का देखा गया है, इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है वो आपका रेज हुआ है महिलाओं का, ओके। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, ये भी हम लोग को समझना होगा कि ये जो था आपका 19th एडिशन था किसका, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का, जिसमें 188 जो आपके कंट्रीज है, इकोनॉमीज है, उसको क्या किया गया, कवर किया गया, एंड रिवील बोथ इनकरेजिंग मोमेंटम एंड persistent structural barriers for facing women's worldwide, okay, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। And I told you कि if you talk about the dimension of the global gender gap report, so we'll have to know कि there are 4 you can say key dimension, okay. First one is economic participation and opportunity. First one is economic participation and opportunity. Second one is what, educational attainments. Third one is what, health and survival. And fourth one is what, political empowerment. So in a short, I told you now कि basically world gender gap report basically focuses on 4 dimension, okay. Please keep in the mind education, health, politics and economic participation. But officially if you go through the 4 dimensions, so these are economic participation and opportunity, second one educational attainment, third one health and survival, and fourth one political empowerment. And then Indian economy's overall performance improved in absolute term by 0.3 points, okay. And इंडिया का जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन बहुत कम है, 0.3 पॉइंट्स जो है आपका हुआ है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो रेट जो है वो आपका सेम रहा है 45.9% एज लास्ट ईयर। And in educational attainments, basically this report talked about India's score, and India's score is 97.1% in educational attainment, okay. So it reflecting what, positive changes, positive shifts in the you can say female share for literacy and you can say tertiary education, okay, and enrollment.
एंड ऑल्सो सो वी कैन से कि एजुकेशन फील्ड इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के पार्टिसिपेशन में या लेबर फोर्स में, देखिएगा सेम रहा है लास्ट ईयर के जैसे, ठीक है। देन अगर हम बात करें पॉलिटिकल में, तो हमारे जो इंडिया में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में पहले लास्ट पार्लियामेंट में जो आपके फीमेल थे उनके नंबर कम हुआ, मिनिस्टर में जो है नंबर कम हुआ फीमेल का, तो इसीलिए जो इंडिया का स्कोर जो है उतना इंप्रूव नहीं हो पाया है। ओके, so now let's move ahead and let's discuss the next thing. Okay, next you can say key facts related to global gender gap report and we'll have to understand one by one. Okay, so अगर बात करेंगे हायर पैरिटी है कहाँ पे, इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड्स हायर पैरिटी इन हेल्थ एंड सर्वाइवल ड्रिवन बाय इंप्रूव्ड स्कोर इन सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड इन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, इस रिपोर्ट क्या कहता है कि इंडिया जो है आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल जो है वो भी आपका हेल्थ में, अगर सर्वाइवल की बात करेंगे तो मेल फीमेल का जो है आपका इंप्रूव हुआ है, सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले न्यूज था कि बिहार का जो सेक्स रेशियो जो 850 के लगभग जो है 846 ऐसे न्यूज जो है आपका आया हुआ था, जबकि एक समय था कि जहां पे बिहार में अगर बात करेंगे तो आपका जो सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा जो है आपका सेक्स रेशियो मतलब कि बहुत गैप जो है आपका हुआ करता था, ठीक है। तो सब में नहीं जाएंगे, हम लोग को समझना है कि इंडिया जो है एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जो दो एस्पेक्ट्स है वहां पे इंडिया का जो स्कोर है या इंडिया का जो इंप्रूवमेंट है दैट इज नॉट गुड। कि हाउ सिमिलर टू अदर कंट्रीज पैरिटी इन हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑब्टेन्ड डिस्पाइट एन ओवरऑल रिडक्शन इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन एंड वुमेन, ये रिपोर्ट ने आपका कहा है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। जो मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या हुआ है कि फीमेल के पार्टिसिपेशन जो है आपका कम हुआ है, खास करके इन पार्लियामेंट, फॉलिंग फ्रॉम 14.7% टू 13.8%, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो फीमेल का जो आपका पार्टिसिपेशन है, ठीक है, या फीमेल के जो नंबर्स है वो आपके डिक्रीज हुए हैं। सो एट प्रेजेंट जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो अब कितने, सिर्फ 13.8% जो मेंबर्स है दे आर फीमेल। ओके, एंड सिमिलरली द शेयर ऑफ वुमेन्स इन मिनिस्टरियल रोल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिनिस्टर में भी देखेंगे पहले ये हुआ करता था 6.5%, अब ये हो गया 5.6%। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो अगर बात करेंगे ना कि स्कोर जो है, ठीक है, वो आपका कम हुआ है। दैट मीन्स दो सेक्टर, एजुकेशन हेल्थ में अच्छा हमने किया, लेकिन जो दो सेक्टर है खास करके अगर हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करिए या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, तो वहां पे ये रिपोर्ट जो कहता है कि इंडिया जो है अच्छा नहीं किया। लेट्स कंपेयर इंडियाज नेबरिंग कंट्री, ओके, एंड द रैंक। सो यू कैन सी कि नेपाल रैंक 125, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138, पाकिस्तान रैंक्ड एट द बॉटम अमंग ऑल द कंट्रीज एट 148। पाकिस्तान हमेशा पिछड़ा का पिछड़ा ही है ना, ठीक है। हमारा भी रैंक खराब है, लेकिन सबसे लास्ट में है किसका रैंक, तो 148 पे, किसका, पाकिस्तान का। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, दैट इज 148। एंड इन 2025 जो सदर्न एशियन जो रैंक्स है वो है आपका 7th विद द जेंडर पैरिटी स्कोर ऑफ 64.6%। एंड ऑफ द 7 इकोनॉमीज दैट मेक अप द रीजनल ब्लॉक, ओनली बांग्लादेश, ओके, 24th रैंक बांग्लादेश का, इस और स्कोर है 77.5% है, ओके, जो कि टॉप 50 में है। अगर साउथ एशिया में अगर बात करेंगे तो अगर आप देखोगे कि एक मात्र कंट्री है दैट इज बांग्लादेश, जिसका रैंक क्या है आपका 24th है, यानी टॉप 50 कंट्री में है। एंड इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, ये जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसका स्कोर है 40.6%। एंड ओवर टाइम Southern Asian, okay, has increased its parity score for economic representation for senior workers, okay, plus 91%, and for increased parity score, and for professional and technical workers plus 17.2%, okay. However, ये जो पैरिटी स्कोर है इससे जो एस्टिमेट किया गया, अर्न इनकम हैज ड्रॉप, ये ठीक है, नंबर बढ़े हैं लेकिन इनकम जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है। ये फैक्ट्स ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रैंक ऑफ द इंडिया, ओके, 131। देन आफ्टर दैट आइसलैंड, ओके, प्लीज कीप इन द माइंड, फर्स्ट रैंकर, लास्ट रैंकर पाकिस्तान, and then Bangladesh in South Asia 24th rank, okay, you'll have to remember. Then Nepal 125, Sri Lanka 130, Bhutan 119, Maldives 138, and Pakistan last. Just you'll have to remember these things, okay. And then also you'll have to remember what India basically performed very well
very well in health and education, but in political representation, political empowerment जो हमारा डिक्रीज हुआ। पार्लियामेंट का ही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है या इस रिपोर्ट ने भी लिया है। सो अगर एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करेंगे तो साउथ एशिया का जो रैंक है वो 6 है और इसका जो स्कोर है 95.4%, ठीक है। और इससे क्या शो होता है कि इकोनॉमिक शोज हाई, ओके, लेवल्स ऑफ वेरिएंस इन लिटरेसी पैरिटी इन नेपाल एंड पाकिस्तान, ओके, एंड द लिटरेसी पैरिटी स्कोर इज बिलो 75%, ओके, while full parity is observed in the Maldives, ओके, मालदीव में फुल जो है पैरिटी। इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, ये नंबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बस हमने जो इसे रख दिया, मैंने डिस्कस करने के लिए न्यूज में दिया हुआ था, तो जस्ट जो फ्यू फैक्ट्स जो हमें याद रखना था वो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो आप लोग को जो कुछ चीजें और जो है अगर मैं कहूँ कि ध्यान में रखना है कि अगर बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक एनुअल इंडेक्स है, ठीक है, 4 एरियाज को फोकस करता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, रिलीज होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 131 एंड जो स्कोर है 64.1% की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन में हमने अच्छा किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जैसा अच्छा करना चाहिए वैसे नहीं किया है, हमारा 0.9% ही स्कोर इंप्रूव हुआ है, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम तो कम हो गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में आप लोग को रखने की जरूरत है। और सबसे लास्ट रैंक किसका है, तो सबसे लास्ट रैंक जो है पाकिस्तान का है। सो आई होप सो कि ये जो वीडियो होगा ना वो एक आपको आइडिया देगा। और नाउ यू कैन ऑल्सो एनालाइज द वन थिंग कि व्हाट आर द रीजन्स, ओके, जो आपका ऐसा क्या रीजन है जिससे इंडिया के स्कोर जो है 131 रहा है, आप लोग भी फाइंड आउट करिएगा। एंड इफ यू नो द रीजन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड देन ऑल्सो ट्राई टू बेसिकली की फ्रेम, आई टोल्ड यू कि अबाउट द यू कैन से प्री क्वेश्चन क्विज टाइप्स पूछा जा सकता है, रिलीज बाय, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकता है, रैंक को मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट वाइज जो है आपका आ सकता है। एंड ऑल्सो दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस, ओके। सो जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें डायरेक्टली यूपीएससी में आस्क और स्टेट सर्विस कि व्हाट आर द रीजन फॉर द जेंडर डिस्पैरिटी, हाई जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडिया एंड हाउ बेसिकली यू कैन से कि इंडिया कैन मैनेज दीज थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया इसी रिपोर्ट का क्या कहना है कि जो अभी रेट चल रहा है उससे अगर फुल जेंडर पैरिटी की अगर बात करेंगे तो आपको 123 ईयर्स, लगभग 125 ईयर्स जो है लग जाएगा, ओके। सो ऑल्सो यू कैन गिव कमेंट वे ऑफ फॉरवर्ड कि कैसे इंडिया जो है बेटर कर सकता है, ठीक है, क्या आपका इश्यूज है कि जिससे हमारे इंडिया में हाई जेंडर पैरिटी जो है आपको देखने को मिलता है, या हाई जेंडर, या हम लोग कहते हैं ना जो हमारा जेंडर गैप है वो बहुत ज्यादा है। सो उसका क्या रीजन हो सकता है आप लोग मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। सो एंड अगर कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, कमेंट करिएगा, देन विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। And also if this video will be helpful for you, you can like, okay, and also you can subscribe our channel for you can say upcoming new videos, for upcoming new topics, for upcoming new current affair topics, okay. And also you can comment if you have any demand related to ki sir please make a video on this topic, so you can comment, okay, and I will try to make a video. So thank you so much, all the best, may God bless you.